Hello everyone, welcome to Empower IAS. Today we will discuss a very interesting topic, and this topic is related to sociology, and the name of the topic is positivism and its critic or criticism. So this is very important topic, and UPSC will ask this topic each and every year, not on alternate year. Each and every year UPSC will ask this topic, mainly in 10 marker, that is positivism and its critic. So लेक्चर्स को लेंदी नहीं बनाना है. वी नीड टू फोकस ऑन शॉर्ट लेक्चर एंड वी नीड टू फोकस ओनली ऑन द इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रक्स पोर्शन. ज़्यादा लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. वी नीड टू फोकस ओनली ऑन द पॉइंट कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक. लेंदी लिखोगे तो वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगा, एंड देयर इज नो टाइम इन एग्जाम ऑल्सो. ओके, सो पॉजिटिविज्म and its critic, which is very important. So introduction, intro लिखिए. We can define the term, what do you mean by positivism? So the concept of positivism in sociology was introduced by Auguste Comte. You need to write this, Auguste Comte. The concept of positivism in sociology was introduced by Auguste Comte. Now what is positivism? Positivism means scientific approach to study human society. Means we can apply the laws of science like observation, experimentation, generalization on sociology, on society to study the society. We can apply the laws of science to study the sociology, and this is called positivism. Means numerical approach, quantitative approach. जैसे साइंस को हम क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं. तो साइंस क्या है? दोज थिंग्स विच कैन बी प्रूव्ड, जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, जिसमें नेचुरल लॉज बनाए जा सकते हैं, जनरलाइजेशन हो सकता है. सो पॉजिटिविज्म मीन्स साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन सोसाइटी, एंड दिस कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे. सो दैट शुड बी योर इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. Characteristics features. This is very important. What should be the characteristics features of positivism? So Auguste Comte बोलते हैं कि in sociology we can only explain positive knowledge. Positive knowledge. In sociology we can explain only positive knowledge. And what do you mean by positive knowledge? Those knowledge which can be observed through observation, which can be acquired through observation. And observation क्या होता है? That can be observed, means किसी भी phenomena को observe करते हैं through our naked eyes. Okay? आप observe कर रहे हो कि दिल्ली is capital of mixing of cultures. यहाँ cultural mix बहुत ज़्यादा है. So this is called पॉजिटिव नॉलेज. मीन्स अगस्ट कॉम्टे बोलते हैं कि पॉजिटिविज्म फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव नॉलेज. मीन्स दोज नॉलेज विच कैन बी ऑब्जर्व, विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव नॉलेज. नाउ व्हाट शुड बी द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पॉजिटिविज्म? इट इज मेनली फोकस ऑन ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी. प्रीलिम्स में दो स्टेज, यूपीएससी में तीन स्टेज होते हैं. दो स्टेज इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एंड मेंस. सो प्रीलिम्स इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर. उसमें आप नंबर लगाए और आप बता सकते हो. प्रीलिम्स इज हाईली ऑब्जेक्टिव इन नेचर. नंबर आपने टिक किया और उसमें आपने बता दिया कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा हूँ. बट व्हाट अबाउट मेंस? दैट इज प्योरली सब्जेक्टिव इन नेचर. यू कांट से कि दिस टाइम आई विल बी इन द फाइनल लिस्ट. So subjectivity and objectivity. Positivism just focusing only on objective criteria, absolute objectivity. The first is positive knowledge, the second is objectivity, the third is focusing on universal laws. Universal laws. तो positivism try to develop sociology as a discipline जहाँ एक universal law बने और उस लॉ को सारे लोग पूरे जो भी वर्ल्ड में है उसको पढ़ें. सो positivism focuses on universal laws. The first is positive knowledge, the second is objectivity, the third one is
universal laws. Now what should be the fourth point? It focuses on laboratory experiment and dependent on science, natural science. Okay, so these are the major four features of positivism. Okay, the first is positive knowledge, second is objectivity, the third is universal law focuses, and the fourth is focuses on laboratory experiment or experiment, and then try to develop sociology on the basis of natural science. So positivism is somewhat related to science, natural science. क्यों? क्योंकि साइंस के जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, जनरलाइजेशन, वो चीज़ें हम सोसाइटी पे लगा सकते हैं एंड देन वी कैन स्टडी द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी एज ए होल. सो दिस इज पॉजिटिविज्म. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द पॉजिटिविज्म? अब मैं इसलिए इसको ऐसे बताता हूं कि यू नो नीड टू फोकस ऑन द इंटायर थिंग. अब 10 मार्कर में आएगा पॉजिटिविज्म की, आपको डिफिनीशन नहीं याद आएगी, एंड देन वी नीड टू राइट दिस 4 पॉइंट कि ये 4 फीचर्स हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस ऑल्सो व्हाट शुड बी द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म. So in this manner you need to cover the entire topic of sociology as well as your GS section, mainly ethics, and static portion like GS1 society, geography, polity, economic and all. So this is characteristics of positivism. Now the last part of this lecture is criticism. Criticism क्या होता है? So what should be the first criticism of positivism, positivist approach? Lack of subjectivity. अब कैसे? For example, आप बोलते हैं we can quantify each and everything. Positivism means quantification as scientific knowledge. तो अभी एक बात बताओ, can you quantify human anger? Can you quantify human anger, hate, love? आप किसी को बोल सकते हो कि मैं आपसे 100 किलो प्यार करता हूँ, 1000 किलो प्यार करता हूँ? No, you can't quantify the object. So positivism completely lacks subjectivity. Some amount of subjectivity is required. So positivism completely lacks subjectivity. Now what should be the second important criticism? Unnecessarily dependent on science. जरूरत नहीं है साइंस पे डिपेंडेंसी की, सोशियोलॉजी की. वी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, मतलब सोशियोलॉजी को इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाया जा सकता है. व्हाई वी आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन साइंस or the natural method or positivist method or non-positivist method? So this should be the criticism कि unnecessarily we are dependent on science. So the first one is lack of subjectivity. The second one is unnecessarily dependent on science. Now what should be the third important criticism of positivism given by Merton? अब आ गया thinker. Merton बोलते हैं we need to develop middle range theories, not middle range theories. Because general theories are not applicable in sociology. There is no need to develop a universal theories. We can focus on middle range theories. This one is the concept given by Merton, and that should be the criticism of sociology, the first one. So the first is lack of subjectivity. The second is unnecessary dependency on science. The third one is given by Merton, that the middle range theory, there is no need to develop universal theories. Now the fourth important, which is very important, Peter Berger. What he says? Peter Berger, he said that generalization is not possible in sociology. Positivism said generalization is possible. He said that generalization
जनरलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. जनरलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन सोशियोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, एक समझते हैं कि एक जनरल बिहेवियर है कि आरएसएस पीपल आर वेरी रेडिकल इन नेचर. दिस इज जनरलाइज. बट इन सोशियोलॉजी जनरलाइजेशन, ये पीटर बर्जर बोलते हैं कि जनरलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन सोशियोलॉजी, क्योंकि वंस यू मीट द आरएसएस पीपल, उसमें बहुत लिबरल लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं. सो इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. अब यही है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन कि इट डिपेंड अपॉन पर्सन, कि आपको लंदन अच्छा लगता है, अगर मिस हैपनिंग्स हो गए तो आपको न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस कहीं पे भी मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो जाए, तो आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी. सो व्हाट शुड बी द फोर्थ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू पीटर बर्जर? जनरलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन सोशियोलॉजी, एंड पॉजिटिविस्ट मेथड सेज दैट जनरलाइजेशन इज possible in sociology. Now Garfinkel, which should be the last criticism of sociology, positivism. Garfinkel, he said that in positivism we are studying society from researcher perspective. In sociology we are focusing only on the researcher perspective. We will study society from researcher perspective. किसी ने रिसर्च किया, किसी ट्राइब के बारे में कुछ बोला, हमने पढ़ लिया. We need to focus और we need to study society from people perspective. कि रियलिटी क्या है, people perspective के थ्रू पढ़ना है. People perspective. So these are the 5 criticism of positivism. The first is what is positivism, numerical approach. The second one is what should be the characteristics, features of positivism, 4-5 point कि universal laws, theses and all. And this is what should be the criticism, what Peter Berger said, Garfinkel said, Merton said. ठीक, these are the criticism. अब लास्ट में कंक्लूजन में हम वेबर का कंक्लूजन लिख सकते हैं. वेबर, what Weber says कि कंप्लीट जनरलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन सोशियोलॉजी. ठीक है, कंप्लीट जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली वी हैड सर्टेन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स. ओके, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स. डेफिनेटली we cannot generalize. Complete generalization is not possible in sociology, definitely, but we had certain trends and pattern in sociology. ठीक, तो ये मिडिल पाथ बताते हैं कि इवन दो वी कांट कंप्लीटली रिलाई ऑन द पॉजिटिविस्ट मेथड्स एंड वी कांट कंप्लीटली रिलाई ऑन द नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड, लेकिन इनके बीच का कुछ पाथ निकालते हैं, एंड दैट इज द रीजन वी गेव इन कंक्लूजन वेबर कंसेप्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिविज्म. अब देखिए विद इन अप्रॉक्स 10, 15 और 20 मिनट्स आपको पॉजिटिविज्म फीचर्स एंड इट्स क्रिटिक आपको पता चल गया. इन द सेम मैनर यू नीड टू फोकस ऑन एवरी टॉपिक. ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यू नीड टू फोकस ऑन द लिमिटेड एरिया, लिमिटेड टॉपिक पे पढ़ना है और लिमिटेड वर्ड्स में चीज़ों को तैयार करना है, सो दैट यू कैन रिकॉल इन एग्जाम. अगर एग्जाम में आप रिकॉल ही नहीं कर पाए, पढ़ने का क्या फ़ायदा. क्रिटिसिज्म आपको 100 उठे पता है, उसका इट इज़ वर्दी. अगर आपको 100 क्रिटिसिज्म पॉजिटिविज्म के पता है, इट इज़ वर्दी, कोई ज़रूरत नहीं है. 5 इज़ मोर देन सफिशिएंट एटलीस्ट टू गेट वेरी गुड मार्क्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. और हम अगले लेक्चर में अलग चीज़ें पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, समवॉट वी विल डिस्कस इन दिस वे, इन दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मेट. क्योंकि जब भी कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, अगर क्रिटिसिज्म हो, फीचर्स हो, कुछ भी हो, कोई डायग्राम हो, तो वी नीड टू फोकस इन सच ए मैनर. अगर आप ऐसे करते हो, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स. अभी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पीपल आर मेकिंग देयर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स ऑन आईपैड. तो उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो वहाँ पेपर मिलेगा, ठीक, और एक पेन. आईपैड नहीं मिलेगा. तो ट्राई टू मेक योर नोट्स ऑन A4 शीट पेपर. फर्स्ट थिंग, इतना भी डिजिटलाइजेशन नहीं होना है कि वहां आपके हाथ ही ना चल पाए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एंड इन द सेम मैनर, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मेट, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और उसमें भी कुछ डायग्राम्स वगैरह होंगे, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.